so my dear student, this is our sixth part for polynomial, class 10th NCERT book, and in this sixth part we will cover optional question. You know, optional question is very important for you. As it is written in your book, it is not for examination purpose, but as per my experience, the board exam, the board question comes from this segment. Wherever you will find optional, you will have to give more importance, okay, because in board examination you will find such question, and you will assume that, oh, this is out of the syllabus. No, these kind of question you will find in your board examination. So let's do it. See this, verify number. We have to verify that the number given alongside the cubical polynomial, these are the cubical polynomial. Below are the zeros, okay, these are the zeros of this cubical polynomial, and these 2, 1, 1 are the zeros, and this is the zeros of this polynomial. And verify the relationship between zeros and coefficient. Zeros is what? Here this is the cubical polynomial, then there will be 3 zeros, alpha, beta and gamma. And how many coefficient are there, sir? A, B, C, D. So there is 7 things, okay, and we have to manage it and we have to verify it, okay. So come to point by point. This is the first question. 2x cube plus x square minus 5x plus 2. If I will take 1 upon 2 as a 0, as it is given, 1 upon 2 as a 0, so what we will have to do? 2 plus square, okay, plus 2. Why I have written like this? Because I have to put down the value of x, because this is the zeros, and if I will put this value on the place of x, the whole polynomial become 0. If it is happen, then I will say yes, this is the zeros. Okay, let's try it. So 1 upon 2, 1 upon 2, 1 upon 2, okay. What it will become? It will become, see this, here there is a cube, so 1 upon 2, this will become 1 upon 8, 1 upon 8 multiplied by 2, this will become 1 upon 4. What it will become? 1 upon 4, okay. ये 1 upon 4 बन गया. Now प्लस ये क्या बन जाएगा? ये भी सर 1 upon 4 बन जाएगा, ठीक है. ये क्या बन जाएगा सर? ये माइनस 5 अपॉन 2 बन जाएगा, ठीक. और ये क्या बन जाएगा? 2. अब इसको आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो. देखो, आप एक इसको सिंपली ऐसे भी कर सकते हो कि सर ये 1 अपॉन 4 है प्लस 1 अपॉन 4 है. मैं ये अपनी नहीं सिखाने जाऊंगा आपको कि ये कैसे कर रहा हूँ मैं. ये हो जाएगा सर 8 अपॉन 4. सबके नीचे 4 है, चलेगा सर. ये प्लस 8 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया सर? प्लस 10. और सर ये माइनस 10, और नीचे क्या हो जाएगा? 0. तो सर ये 0 आ गया. इसका मतलब 1 अपॉन 2 क्या है? इसका मतलब सर 1 अपॉन 2 जो है ये जीरोस है, ओके सर. नाउ लेट्स चेक अनदर वन. दिस इज 1, सो आई विल पुट द 1 ऑन द प्लेस ऑफ x, ओके. सो आई विल डू इट डायरेक्टली. 2 x क्यूब है सर, तो 2 इंटू 1 का क्यूब कर दिया मैंने. फिर सर 1 स्क्वायर है, देखिए x का स्क्वायर, फिर माइनस 5 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा सर? 5 हो जाएगा, एंड प्लस 2. सो सर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये बना 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2. देखिए क्या बन रहा है ये सर? ये भी 0 बन रहा है. तो सर इसका मतलब जो है 1 भी क्या है? 1 भी इसका एक 0 है, ठीक है. Now come to the next part, minus 2. Okay, let's do here. सेम वे में कर लेंगे सर. 2 x की जगह पर हम लोग क्या रख लेंगे? -2 क्यूब, ओके सर. फिर प्लस x की जगह पर -2 रखेंगे और स्क्वायर x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर. फिर -5 x की जगह पर क्या रखना है? -2 एंड प्लस 2. दिस इज व्हाट? प्लस 2. इसको सॉल्व कर लीजिए, इजीली सॉल्व हो जाएगा. सर ये क्या हुआ? -8 इंटू 2 -16 सर. ये क्या हुआ सर? ये +4 हो जाएगा.
ये क्या हुआ सर +10 हो जाएगा और ये क्या हुआ +2 हो जाएगा। आप चेक कर लो ये कितना हुआ +16 ये क्या हुआ -16। सर ये 0 आ रहा है, तो सर इसका मतलब ये है कि हमारा -2 भी एक जीरोस है। यहां तक क्लियर है। अब इसके जीरोस को वेरीफाई करेंगे, है ना, इसके जीरोस को वेरीफाई करेंगे, तो यहां पर करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन तो हमारा ये है। यस, अब इसके जो जीरोस हैं, जीरोस क्या दिए हुए थे चेक कर लेते हैं। देखिए जीरोस था 1/2, 1 एंड -2। इसके जो जीरोस थे 1/2 फिर 1 एंड -2, यही बेटा जीरोस था। ओके गुड, ये तो हमारा हो गया। अब देखो मैं इसके रिलेशंस को चेक करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, इसमें कितने रूट्स है, कितने जीरोस है, 3 है। तो सर मैं ऐसे करूंगा अल्फा, अल्फा और बीटा और गामा। ये अल्फा बीटा गामा क्या हुआ आप खुद बता दो। सर अल्फा को क्या मान ले 1/2 मान ले, जीरो है, किसी को कुछ मान सकते हो आप। सर बीटा को क्या मान ले 1 मान ले, मान लीजिए। और इसको सर गामा को -2 मान ले, मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या क्या है आपके पास सर, और भी तो कुछ है। हाँ देखो और क्या सर, ए है, बी है, सी है और डी भी तो है। अब 1 बाई 1 बताइए ए बी सी डी का वैल्यू क्या है। चलिए सर ए जो है ना ये तो 2 है, साफ साफ दिख रहा है ए एक्स। भाई ये जो किस फॉर्मेट में, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसे ही तो फॉर्मेट में है। तो चलिए मैच कर लीजिए। सर बी की जगह पर क्या लिख दूं 1, सी की जगह पर क्या लिखूं सर -5 और डी की जगह पर सर 2। ये देखो ये चीजें आ गई आपके पास। अब इसके रिलेशंस को तो देखना पड़ेगा। चलिए हमारे पास जो रिलेशंस है वो क्या है, हमारे पास जो रिलेशन है वो ये है सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होता है -b/a होता है। गुड, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को लिखिए यहाँ पर 1/2 +1 एंड -2। भाई चलो इसको भी समझ लो, है ना, एकदम से बेसिक। ये अभी तो क्लियर है। सर यहाँ पर क्या आना चाहिए माइनस, पहले तो माइनस लगा दीजिए, माइनस लगा दिया। सर b क्या है, b मेरा सर 1 है, 1 रख लो। a क्या है सर, a मेरा 2 है। तो अब देखना है कि सर LHS RHS बराबर आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो सर जीरोस तो वेरीफाई हो गया था, क्या इनके जीरोस का समेशन का जो रिलेशन आता है वो वेरीफाई होगा? 100% होगा, होना ही पड़ेगा, इसलिए कि अगर जीरोस था वो तो ये होगा। अगर कोई ऐसा वैल्यू ले लेते जो जीरोस होता ही नहीं, वैल्यू रखने पर जीरो आता ही नहीं, यहाँ पर देखिए सबको रखने पर 0 0 0 तो आया है, तो हम कोई ऐसा ले लिए होते जो वैल्यू रखने पर 0 ही नहीं आता, तो ये भी वेरीफाई नहीं करता, ये भी वेरीफाई नहीं करता, बट ये वेरीफाई करेगा। अब देखिए ये क्या हुआ 1/2, ये हो जाएगा बेटा 3/2 -2। ओके देख लीजिए क्या होगा सर -1/2। बेटा इधर भी -1/2 आ जाएगा और इधर भी -1/2 आ जाएगा। अभी मत पूछना कि सर ये कैसे आया, क्लास 10 में पहुंच चुके हैं। 3/2 -2 -1/2 आएगा एंड माइनस, तो ये वेरीफाई हो गया हमारा। ठीक, ये तो सर सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गया, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं सम ऑफ जीरो, सर ये वेरीफाई हो गया। अब सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये भी तो है हमारे सामने, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये भी तो लेना है। अच्छा सर ये कैसे लेते हैं, कैसे लेते हैं, याद करिए याद करिए याद करिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यही था ना बेटा। और इसका वैल्यू क्या आता है सर, इसका तो -b/, में आता है, उसका जो है c/a आता है। ये ठीक है, वेरीफाई करेंगे हम लोग, वेरीफाई करेंगे सर। अल्फा इंटू बीटा, व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा सर, अल्फा इंटू बीटा मैं 1 बाई 1 करूंगा, ये अल्फा हो गया सर, बीटा क्या है 1, ये देखिए सर अल्फा इंटू बीटा, फिर प्लस सर बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा सर -2,
ये लीजिए सर 1 मल्टीप्लाइड बाई -2, दिस इज व्हाट माइनस। ओके सर फिर से प्लस लेना पड़ेगा, ले लीजिए। गामा इंटू अल्फा, ये गामा और ये अल्फा, -2 डॉट डॉट मीन्स मल्टीप्लाई 1/2। ये चलिए अब इसको कर लेते हैं। सर ये कितना आएगा, चेक कर लो बेटा कितना आएगा। ये आ गया 1/2, ठीक है बेटा। ये 1 मल्टीप्लाइड बाई -2 आ जाएगा, तो फिर प्लस के आगे तो यहाँ पर भी -2 आ गया। फिर ये देखो ये और ये कट जाएगा, ये और ये 2 तो -1, तो यहाँ भी क्या आ गया -1, ठीक है ये। अच्छा इधर क्या होगा सर, c क्या है हमारा, c तो है -5, c देखिए -5 है, और a क्या है सर, a तो 2 है। तो चेक करिए ये वाला भी सेम सेम आ रहा है क्या, चेक करते हैं। देखिए 1/2 -2 -1 -3 हो जाएगा। सर ये क्या बना, 3 2 जा 6, 1 -6/2 -5/2। बेटा ये क्या बना इधर, -5/2 एंड इज इक्वल टू -5/2। सर ये बराबर तो हो रहा है दोनों, ये दोनों तो बराबर हो रहा है, LHS RHS। तो मैं क्या बोलूंगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, टेकन एट अ टाइम। ये क्या हो रहा है, LHS RHS बराबर हो रहा है, मतलब सर ये वेरीफाई हो रहा है। अब लास्ट वन बच गया हमारा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ओके सो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये सर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है सर, ये अल्फा बीटा एंड गामा। क्या होता है सर इसका वैल्यू, इसका वैल्यू -d/a होता है, -d/a, याद करिए, है ना, याद करिए। चलिए 1 बाई 1 कर ले इसको, हाँ 1 बाई 1 करिए भाई। अल्फा इज व्हाट 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बीटा, बीटा इज व्हाट 1, और गामा सर, गामा तो -2 है, -2 इज इक्वल टू सर डी, पहले तो माइनस लगाएंगे, और डी इज व्हाट, डी इज 2 सर, और ए इज व्हाट, ए इज सर, ए इज आल्सो 2। चेक करिए लेफ्ट राइट बराबर है क्या, हाँ सर लेफ्ट राइट बराबर है क्या, 2 से 2 कट गया, किधर आया -1, इधर क्या आया -1। चेक करिए, तो यहाँ पर भी LHS RHS बराबर आ गया, एंड हेंस इट इज आल्सो वेरीफाइड। तो हमारे पास 2x³ + x² - 5x + 2, this is the given polynomial and its zeros are also given 1/2, 1 and -2. The zeros are also verified, here we have verified it first, second and third, and then after first if it is verified, then the relationship between coefficient and zero should be verified, ये होना ही पड़ेगा, मतलब होना ही पड़ेगा इसको, है ना। अगर उधर वेरीफाइड नहीं होता तो इधर भी नहीं होता, अगर वो हो गया जीरोस वेरीफाई हो गया तो इनके रिलेशंस भी वेरीफाई होंगे, ठीक। चलिए अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, देखिए x³, अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं इसको यहाँ पर सोच रहा हूँ लिख लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये है हमारा x³ - 4x² + 5x एंड -2, और इसके जीरोस क्या है बेटा, इसके जीरोस जो है वो है यस 2 1 1, तो 2 1 1 चलो मैं लिख लूंगा, है ना। x³ - 4x² + 5x - 2, ठीक है, यस ये हो गया हमारा। मैं इसको इधर लाता हूँ और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो ये तो हमारा देखिए, अच्छा इसके जीरोस क्या थे, इसके जीरोस बेहतर थे 1 1 एंड -2, मेरे ख्याल से चेक कर लेते हैं। इसके जीरोस क्या थे, 2 1 एंड 1, ठीक है, यस। सो देखिए इसके जो जीरोस है वो 2 1 एंड 1, ये जीरोस है, वेरीफाई करना है, चलिए फटाफट कर लेते हैं ना। सो ये देखिए x³, तो x³ ये -4, फिर x की जगह पर मुझे रखना है, मैंने स्क्वायर रख दिया, +5, फिर ये एंड -2, 1 बाई 1 वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है, 1 बाई 1 वैल्यू रख लेते हैं। सर अगर यहाँ पर 2 रख देता हूँ, यहाँ भी 2 रख देता हूँ, क्योंकि x की जगह पर क्या रखना है, 2 रखना है, चेक करना है जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए देख लीजिए, हाँ ये कितना हो जाएगा बेटा 8 माइनस ये कितना हो जाएगा 16, साफ साफ समझ में आ रहा है ना, 2 × 2 है ना 16, सब इजी है आप लोगों के लिए ना। ये क्या हो जाएगा 10 और ये क्या हो जाएगा -2, कितना हो रहा है सर 18 और 18, देखो ये जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जीरो हो रहा है बेटा। अब इतना ये क्लास 10 में पहुंच चुके हैं आप लोग, 10 and 8 + 18 - 16 जीरो हो रहा है, ठीक है।
तो सर ये वेरीफाई है, ये सर वेरीफाई है। अब 1 रख के चेक कर लेते हैं। और देखो 1 2 बार दिया है ना, 1 जो है क्वेश्चन में 2 बार दे दिया है। 2 बार क्यों दिया है पता है? इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें -1 आ रहा था 2 बार। तो आप उसको उसी नजरिए से देखिए, है ना, कि ग्राफ पे जो है, ये अगर ग्राफ है तो इधर बेटा 1 है, इसको भी बता ही देता हूं, ये अगर 1 है और ये 2 है, तो क्योंकि ये क्यूबिकल पॉलिनोमियल है तो एक नीचे रहेगा एक ऊपर रहेगा, ठीक है। तो एक नीचे रहेगा ऐसे, अगर मैं ये बात करूं कि एक नीचे एक ऊपर, तो 1 पे जो है 2 जगह से अप्रोच होगा, देखो ऐसे ऐसे होगा, है ना, ये समथिंग लाइक दैट कि सर 1, ये 1 है अगर और ये 2 है, तो इधर भी से भी इधर से भी, तो 1 पे 2 पॉइंट बन रहे हैं और 2 पे तो सर एक ही पॉइंट बन रहा है। तो ये बेसिकली तो 2 रूट से देखा जाए तो, लेकिन असल में 3 रूट है ना, तो ये वजह बनता है। चलो इसको छोड़ देते हैं। हाँ, इसको वेरीफाई करते हैं 1 बाई 1। तो सिर्फ एक 1 हमें वेरीफाई करना है, तो बेटा 1 को ऐसे ही वेरीफाई कर लेते हैं ना फटाफट। चलो ये 1 को वेरीफाई करते हैं। बेटा ये क्या हो जाएगा, x 1 का क्यूब 1 ही होगा, फिर 4 हो जाएगा सर, फिर 5 हो जाएगा सर, फिर -2 हो जाएगा। ओके 5 और 6, बेटा ये भी देखो 0 आ रहा है, तो ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक। चलो अब मैं ये बोलता हूँ कि सर पहले ना अल्फा बीटा गामा डिसाइड करते हैं अपना। लो सर अल्फा बीटा गामा डिसाइड करते हैं। अल्फा बीटा गामा, अल्फा क्या है सर 2 मान लो उसको, बीटा को 1 मान लो और गामा को भी 1 मान लो, ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा सर एबीसीडी भी तो करना पड़ेगा, हाँ करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, ए बी सी एंड डी। ये चलिए एबीसीडी, ए इज व्हाट सर, ए इज 1, देखिए बी इज व्हाट, बी इज सर -4, सी इज व्हाट, सी इज सर 5 एंड डी इज व्हाट, डी इज सर -2। तो चलिए ये भी हो गया हमारा। अब चेक करते हैं 1 बाई 1, है ना, सम ऑफ जीरोस को चेक करेंगे हम लोग। किसको चेक करेंगे? सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस यहां पर। चलिए मैं बोलता हूं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या है सर? सम ऑफ जीरोस जो है वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा, और ये किसके बराबर होगा सर? ये तो -b/a के बराबर होता है। आपको फिर से मैं लिखने की जरूरत नहीं, x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है ना, ये तो आपको समझ में आ रहा है। तो सर ये तो होता है -b/a। ओके सर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को कैसे दिखाएंगे सर? दिखा लो बेटा, ये लिखो ना अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पर ये आ गया 2 + 1 + 1, और इधर क्या आएगा माइनस, b इज व्हाट, देखो b इज -4, तो सर b -4 है, और a इज व्हाट, a इज सर 1। चेक करो बेटा इधर, है ना, ये चेक करो, चेक करो, ये 4 आया, इधर क्या आया, इधर भी सर 4 आया। वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ सर? दिस इज वेरीफाइड। अगला देखते हैं सम ऑफ जीरो। अगला क्या होगा? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ zeros, sum of the product of the zeros taken two at a time, है ना। तो इसको पहले तो लिख लेते हैं सर, ये होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और ये किसके बराबर होता है सर? सर ये c/a के बराबर होता है, याद हो गया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को, ठीक है। अब चलिए यहीं पे डायरेक्ट करेंगे हम लोग, है ना, अल्फा इंटू बीटा। व्हाट इज माई अल्फा इंटू बीटा? देखिए अल्फा 2 है, बीटा 1 है, तो सर 2 आ गया यहाँ पर तो सर 2 आ गया, प्लस बीटा इंटू गामा, सर बीटा 1 गामा भी 1, तो सर 1 इंटू 1 1 आ गया, प्लस गामा इंटू अल्फा, सर गामा 1 है, बीटा अल्फा 2 है, सो 1 इंटू 2 2 आ गया सर, ठीक है सर। सी इज व्हाट, सी इज 5, ए इज व्हाट 1। चेक कर लो बेटा, इधर भी 5 आ गया और इधर भी 5 आ गया, तो सर दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। चलिए ये तो हो गया सर। आगे जो है हमारा कि अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होगा? तो सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा गामा, ये क्या है सर? ये -d/a होता है ना, सबको पता है, पॉलिनोमियल करने वाले बच्चे को पता है। तो अल्फा बीटा गामा, व्हाट इज अल्फा बीटा गामा सर? चेक कर लो, 2 × 1 × 1 क्या होगा बेटा? 2 ×
1 इंटू 1, और यहाँ पर माइनस डी इज वॉट, डी इज सर -4, ओके। ए इज वॉट, ओ सॉरी डी -4 नहीं है, डी जो है हमारा वो डी -2 है, ठीक है, -2। ए इज वॉट 1। तो बेटा ये क्या आया बताओ, इधर भी 2 आया और इधर भी 2 आया, सो दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। तो इस क्वेश्चन में ये सब वेरीफाइड हो गया, दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए, दोनों इसके जीरोस को वेरीफाई किया, दोनों इसके जीरोस अल्फा बीटा गामा और उनके एबीसीडी यानी कोएफिशिएंट के रिलेशन को भी हमने वेरीफाई कर लिया, सब वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। ये हो गया हो गया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड नंबर, फाइंड द क्यूबिकल पॉलिनोमियल विद सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन 2 एट ए टाइम, वही अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 2 -7 -14। देखो तो ये क्या कह रहा है कि सर एक पॉलिनोमियल है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी, ये सर एक पॉलिनोमियल है, और हमें पता है कि सर इनके रूट्स भी तो होंगे, एक्स की जगह पर क्या रख दूं कि वो जो है 0 आ जाए, तो सर 3 रूट होंगे, अल्फा होगा, बीटा होगा, गामा होगा, सर उन्हीं को जोड़ने पर ना, उन्हीं को जोड़ने पर क्या आता है सर, इसी का -b/a हो जाता है। अच्छा सर फिर से क्या होता है कि उन्हीं जीरोस को दो बार आप देखो, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन 2 एट ए टाइम, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, सम भी है प्रोडक्ट भी है, सम हो रहा है लेकिन प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हो रहा है, बट टेकन 2 एट ए टाइम, दो को एक साथ लिया है। और सर ये क्या होता है, ये c/a हो जाता है, सबको पता है। फिर प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, प्रोडक्ट सर अल्फा बीटा गामा, और ये क्या होता है सर, ये तो d/a होता है। पॉलिनोमियल करने वाले बच्चे को ये बात पता है, ये बात सबको पता है, ठीक है। चलिए अब मैं बोलता हूं कि ठीक है ये तो हो गया, अब ये दिया हुआ है, ये जो वैल्यू है ये दिया हुआ है सर, ये -b/a जो है ना, ये तो सर 2 दिया हुआ है, और सर ये c/a है, ये तो -7 दिया हुआ है, और ये -d/a है, ये -14 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब सर इसको हमें पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है ना। तो चलिए पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे यही हमें देखना है, कुछ नहीं, पहले आप इसको फॉर्मेट में लिख लेंगे तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगा। देखिए a² मैं चाहता हूं कि इसको ना a से पहले डिवाइड आप कर दो, देखो सबके नीचे a आया है ना बेटा, तो इस पूरे को अगर a से डिवाइड कर दोगे तो कोई दिक्कत है, क्यों दिक्कत नहीं पता है, क्योंकि सर ये इवेंचुअली तो ये 0 है, तो अगर a से डिवाइड कर दोगे और उधर भी a से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कर लो, कुछ भी कर सकते हो है ना। अगर ये सिचुएशन है तो किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा x के ऊपर, ठीक है सर। तो हम एक काम करते हैं कि इसी चीज को फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि सर फिर तो ये x³ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, प्लस b/a हो जाएगा क्या, x², हाँ हो जाएगा, देखो a से डिवाइड किया, फिर प्लस c/a x हो जाएगा क्या, हो जाएगा, प्लस d/a हो जाएगा क्या, ये सब हो जाएगा। और जो हम चाह रहे थे वो हमें मिल गया, देखो हमें क्या मिला, ये देखो ये मिला और ये मिल गया। लेकिन सर यहां पर ना माइनस माइनस है 2 जगह, वहां पर तो प्लस है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नथिंग वरी अबाउट दैट। चलिए आगे देख लेते हैं इसको कि कैसे इसको कर लेंगे हम लोग। देखिए x² की जगह पर तो x³ की जगह पर x³ रखिए, b/a की जगह पर ये रख सकते हैं क्या सर, ये वाला, ना सर उधर b/a इधर -b/a है, बेटा माइनस को इधर उठा दो, नहीं समझ में आया। देखो मैं बोलता हूं माइनस इधर आ जाएगा तो ये b/a इज इक्वल टू क्या बनेगा, -अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बन जाएगा। क्या कहते हो आप, आ गया सर c/a, ये तो सही है सर, ये तो एज इट इज दिया ही हुआ है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये तो सर दिया ही हुआ, और -d/a, सर -d/a, इस माइनस को उधर हटा दीजिए सर, तो ये बन जाएगा d/a, और ये क्या बन जाएगा सर, माइनस इधर आ जाएगा, सो -अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। तो अब करना क्या है, बस अब रख देना है, और क्या करना है, चलो रख देते हैं। b/a की जगह पर ये रख दूं मैं, बताओ, प्लस है लेकिन प्लस के आगे माइनस लगाऊंगा तो सर ये तो माइनस ही बना देगा, तो मैं बोलता हूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और आगे क्या लगाओ बेटा, x² लगा देता हूं।
फिर आगे देखो प्लस है, लगा लो प्लस। सी अपॉन ए का वैल्यू रख दो सर, सी अपॉन ए का वैल्यू क्या आया है सर, ये तो है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है सर। आगे सर फिर प्लस आया है, ओके मैं प्लस रखूंगा, मैं प्लस रखूंगा, लेकिन डी अपॉन ए है, और सर डी अपॉन ए का वैल्यू क्या है, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है। सर प्लस लगा के यहाँ माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा लगाऊं तो प्लस लगाने का कोई मकसद हुआ सर, नहीं हुआ, तो हटा दो इसको, प्लस माइनस मिलके क्या बनता है, माइनस बनता है। तो इधर आप जो है ना माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा लिख दीजिए, ठीक है। तो सर माइनस अल्फा बीटा गामा, ये वो हो गया हमारा पॉलिनोमियल, लेकिन ये वेरिएबल के फॉर्मेट में है। अब करोगे, अब क्या करोगे बताओ सर, कुछ नहीं करना है, हमारा अल्फा बीटा गामा बस रख लेना है, तो रख लेते हैं। चलिए देखिए, आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है बेटा, सर ये 2 है, एक्स क्यूब माइनस, इसकी जगह पर देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर है, माइनस वी अपॉन ए के बराबर है, ओके। सर वो माइनस का चक्कर अब तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि माइनस तो हम ले ही रहे हैं। इसको देखिए ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, 2 के बराबर है सर, तो मैंने यहाँ पर 2 रखा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर रखा, प्लस सर अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा गामा प्लस अल्फा, सर ये क्या हो रहा है सर, ये -7 आ रहा है, देखो यही तो था सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, दिस इज व्हाट सम ऑफ जीरो एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो सर यहाँ पर क्या रख दूं मैं, यहाँ पर -14 रखिए, और क्या रखेंगे, और यहाँ पर देखो बेटा x भी होगा, ये x हम भूल गए है ना, तो इसको फिर से अच्छे से रख लेते हैं, ये x माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक। तो यहाँ पर x भी मैं रखूंगा, और फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, सर वो क्या है, वो तो -14 है सर, एक माइनस सामने है, चलो मैं ऐसे रखता हूँ, माइनस पहले से है, और फिर इसका वैल्यू, सिर्फ इसका वैल्यू, इस अल्फा बीटा गामा की जगह मुझे -14 रखना है, तो माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा सर, माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा ना, ओके। तो प्लस कर लीजिए इसको, ये लीजिए सर, ये हुआ आपका। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए, है ना, थोड़ा सा बेहतरीन तरीका से लिख लीजिए सर, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, फिर प्लस माइनस -14x एंड प्लस 14, सही है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ 14 कहाँ से आ गया भाई, ये 14 मैंने क्यों लिख दिया, ये तो -7 होगा ना, हटाओ इसको, ये -7 होगा, नो 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 नो, -7, तो बेटा यहाँ भी क्या होगा, -7 होगा, हाँ। तो ये फाइनली आपका वो पॉलिनोमियल है जिसका सम ऑफ द जीरोस क्या है, 2 है, सम ऑफ द जीरोस क्या है, 2 है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है, -7 है, और सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है, -14, यानी सम ऑफ जीरोस 2, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन एज 2 एट अ टाइम -7 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस -14। तो वो पॉलिनोमियल क्या होगा, वो पॉलिनोमियल ये है, ठीक है। आप इसका जीरोस अगर निकाल सकते हो तो निकालो, और उसको जोड़ोगे तो 2 आएगा, दो को एक साथ लेके मल्टीप्लाई करके और फिर जोड़ोगे तो सर -7 आएगा, और सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 14 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग, कोई इसमें डाउट है चेक कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो ये क्वेश्चन है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये भाई क्या कह रहा है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है बेटा, पॉलिनोमियल है हमारा ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आर, इसके जीरोस क्या है, a माइनस बी, ए एंड ए प्लस बी, फाइंड ए एंड बी, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ भाई, मेरा पॉलिनोमियल क्या है, मेरा पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये मेरा पॉलिनोमियल है, और इसके जीरोस क्या है, इसके जीरोस को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सर, ये है a माइनस बी, फिर a एंड फिर a प्लस बी, ये तो a और b का वैल्यू पता करना है, ठीक है, गुड। हमें पता है कि सर इनका जो a प्लस, ये तीनों को अगर मैं रख दूं x की जगह पर, है ना, मतलब एक को x की जगह पर रखूंगा, फिर a को भी x की जगह पर रखूंगा, फिर a प्लस बी को भी x की जगह पर रखूंगा, तो ये मेरा जीरो तो दे देगा। अच्छा, ये मैं मान लेता हूं कि ये मेरा अल्फा है, ये जो है सर ये अल्फा हो गया, ये सर क्या हो गया, बीटा हो गया,
और ये सर क्या हो गया, गामा हो गया। तो मुझे पता है ना कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है। हाँ सर पता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए। ये तो मुझे ये तीनों को जोड़ दो बेटा, क्या कहते हो। अल्फा मेरा क्या है, अल्फा मेरा ए माइनस बी है। भाई और कोई तरीका है, यही तरीका है ना कि सर ये अगर जोड़ने वोड़ने से ना देखो कुछ ना कुछ कट के खत्म हो जाएगा। और एक तरफ मुझे ना क्या मिलेगा, माइनस बी अपॉन ए का वैल्यू मिलेगा। और सर माइनस बी अपॉन ए का वैल्यू तो माइनस बी और एक तो दिया हुआ है इधर, है ना। तो मुझे उधर ए और बी का वैल्यू पता चलेगा। अच्छा अभी कंफ्यूज नहीं होना है कि सर इधर ए और बी अलग है, ये ए और बी अलग है और ये ए और बी अलग है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कैसे मैं डिसाइड करूँ। मैं कैपिटल ले लूँ क्या, कैपिटल कैपिटल में सोचो, है ना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं बोलता हूँ सर ये मेरा a माइनस बी, सर ये a और ये फिर सर a प्लस बी, ऐसे सोचो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये दोनों अलग अलग चीजें बेसिकली, ठीक है। इसको कुछ m y m और बाकी चीजों में दे देना था, बट ये भी नहीं। और चूंकि हमारा ये जो सम ऑफ द जीरोस ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है, ये भी ए बी का ही रिलेशन, ए बी सी डी होता है, हम ए बी सी डी मान लेते हैं। तो किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये है, सर इसको जोड़ दीजिए, ये पूरे को जोड़ दीजिए। सर जोड़ देते हैं, ए माइनस बी फिर प्लस ए एंड फिर प्लस ए प्लस बी। इधर क्या आ रहा है सर, इधर तो माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी अपॉन ए की जगह पर बी मेरा क्या है सर, बी मेरा माइनस 3 है, तो माइनस फिर माइनस 3, और ए क्या है सर, ए तो 1 है, तो फाइनली इधर क्या है 3। अच्छा अब इधर तो देखो क्या आ रहा है सर, ये प्लस ए और ये प्लस ए नहीं, ये तो ए और ए हो 3 ए हो जाएगा और ये बी कट जाएगा, ठीक है। सो 3a इज इक्वल टू क्या आया बताओ, ये देखो 3a इज इक्वल टू क्या आया सर, 3 आया। तो a का वैल्यू क्या आया, a का वैल्यू 1 आया सर, ये सही हो गया, a का वैल्यू तो आ गया। अब b का वैल्यू निकालना है, क्लियर है मेरी बात। चलो a का वैल्यू तो सर आ गया, अब b का वैल्यू, यानी सर ये मैंने कैपिटल, इसमें स्मॉल दिया था, मैंने कैपिटल लिया, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना बेटा, ये बी और इसमें से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस लेने की जरूरत है क्या, नहीं वो बहुत लंबा हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस लो ना। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है कि सर इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, किसका सर, अल्फा बीटा गामा का आपस में मल्टीप्लाई होता है, ओके सर। और वो किसके बराबर होता है, वो माइनस डी अपॉन ए के बराबर होता है। तो क्या लग रहा है कि अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाए, ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है, और ये 1 आ जाएगा। तो क्या लग रहा है, हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, है ना, नहीं तो फिर तीसरा ऑप्शन तो है ही। तो देखो ए माइनस बी फिर ए प्लस बी और फिर ए, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए, फाइनली क्या हो जाएगा ए क्यूब, ये देखिए ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। ये क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, दिस इज व्हाट सर, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है। और सर ये किसके बराबर होता है, ये माइनस डी अपॉन ए के बराबर होता है। तो सर इधर भी तो माइनस डी अपॉन ए लिखूंगा, तो डी क्या है सर मेरा, डी सर मेरा देखिए 1 है, तो सर यहाँ पर 1 लिखूं माइनस लगा के, ओके सर। और ए क्या है, ए भी मेरा 1 है, तो क्या आया फाइनली बताओ सर, फाइनली तो ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ गया, ठीक है। ए का वैल्यू पहले से ही क्या है, ए का वैल्यू तो सर पहले से ही 1 दिया हुआ है, ओके। तो सर यहाँ पर मैंने 1 रखा, 1 का क्यूब 1 ही होगा, फिर 1 इंटू बी, तो ये हो गया सर बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ओके। बी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, ये बेटा उधर चला जाएगा, ये जो है देखो b इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, है ना, सॉरी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो b का वैल्यू क्या होगा, b इज इक्वल टू √2, ये। तो a का वैल्यू क्या आया हमारे सामने सर, a का वैल्यू आया 1 और b का वैल्यू क्या आया √2, ये। और असल में a और b हमारा कैपिटल में था ये, ठीक है ना बेटा, तो कैपिटल में नहीं था, स्मॉल में था, तो मैं लिख ही देता हूँ ना 1 एंड b इज इक्वल टू √2। कोई दिक्कत, चेक कर लो आप लोग, है ना।
कि सर अल्फा बीटा गामा हमने इसको जोड़ दिया, जोड़ा तो सर क्या हुआ, माइनस बी से प्लस ये कैंसिल हुआ, और सर ये 3a इज इक्वल टू 3, क्यों सर, माइनस बी अपॉन ए होता है, तो ए का वैल्यू आ गया 3। अगेन सिमिलरली उसी तरह से हमने सर मल्टीप्लाई कर दिया अल्फा बीटा गामा, बेटा इसका मल्टीप्लाई करो, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से करेंगे तो ए क्यूब माइनस ए प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह पर 1 रख देंगे तो यहाँ पर 1 रखें, यहाँ भी 1 रखेंगे, 1 आ गया बी स्क्वायर। अब ये जो है बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो बी इज इक्वल टू 2, तो ये वैल्यू हमारा आ गया, है ना, क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं सर। तो तीसरा हो गया ये हमारा, नाउ चौथा, ये इफ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल 2 प्लस माइनस रूट 3 फाइंड अदर जीरोस, है ना, अगर ये एक पॉलिनोमियल है, इसके 2 जीरोस तो सर ये हैं, बाकी के 2 जीरोस पता करने हैं, ठीक है सर, कर लेते हैं, चेक करते हैं। ये देखिए, पहली बात तो ये पॉलिनोमियल है आपका, दिस वन 4th डिग्री पॉलिनोमियल है और 2 रूट्स हैं आपके, 2 प्लस माइनस रूट 3 फाइंड अदर जीरोस, ओके, तो एक बार 2 प्लस रूट 3 लेंगे, एक बार 2 माइनस रूट 3 लेंगे, कोई बात नहीं, है ना, मैं पूरा पॉलिनोमियल पहले लिखता हूँ। सर मेरा पॉलिनोमियल जो है वो x पे पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138 माइनस 35, ये है हमारा पॉलिनोमियल। इसके जीरोस कहाँ पर है सर, जीरोस 2 तो दिया हुआ है, 2 जीरोस देखिए दिया हुआ है, एक है 2 प्लस रूट 3, मैं इसके जीरोस को दूसरे कलर से ले लेता हूँ, देखिए एक है 2 प्लस रूट 3, ये एक जीरोस, और दूसरा है बेटा 2 माइनस रूट 3, बाकी के 2 जीरोस पता करने हैं आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं ये बोलता हूँ कि सर अगर ये जीरोस हो जाता है, मान लो ये वैल्यू रखने पर जीरो होता है, तो मैं इसका फैक्टराइजेशन तो कर सकता हूँ ना। मैंने भी ये बोला कि भाई इसका अल्फा बीटा गामा एंड लैम्डा की 4 फैक्टर हुए, इसके 4 फैक्टर, सर ये अल्फा, ये बीटा, ये मान लीजिए गामा और एक लैम्डा, यही दोनों हमें पता करने हैं, ये दोनों तो पता है, दिया हुआ है। तो अगर आपको ये दिया हुआ है तो आप इसको कैसे लिखते हैं फैक्टराइजेशन में, सर ये तो बहुत आसान है, हम ऐसे कर देते हैं, x माइनस अल्फा, याद करिए, x माइनस बीटा, x माइनस गामा और x माइनस लैम्डा, ऐसे कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं फिर इसको हम, सर फिर तो ये जो है x माइनस, मैं इसी को लिख रहा हूँ, इसी चीज को मैं ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि इधर तो जीरो होना है फिलहाल, ठीक है। x माइनस अल्फा, अल्फा को सर चलिए 2 ये मान लेते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट 2 एंड माइनस रूट 2 नहीं सॉरी माइनस 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस करना है, ओके, और उधर क्या हो जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, कुछ ऐसे, ठीक है बेटा, ये हमने रख लिया, आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा, अब x माइनस बीटा, तो सर x माइनस, वो देखिए वो वाला बीटा हमने मान लिया, तो x माइनस 2 प्लस रूट 3, है ना, क्या कहते हैं, चलिए सर यहाँ तक भी ठीक है। अब उसके बाद x माइनस गामा, x माइनस गामा और x माइनस लैम्डा, x माइनस लैम्डा, और ये किसके बराबर आएगा सर, ये किसके बराबर आएगा बेटा, ये जो है अभी भी इसी के तो बराबर आएगा, ये वाला टर्म x पे पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर एंड प्लस 138 माइनस 35, ये ठीक है। अब देखो मुझे ये गामा और लैम्डा का वैल्यू निकालना है, तो ये तो सर नंबर है, अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और ले जाके उधर डिवाइड कर दूँ तो ये तो चीज़ आ जाएगा ना, तो कर लेते, पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं सर। देखो पहले क्या होगा, इस x का इन सब में मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, होगा सर, होगा, फिर इसका भी हो जाएगा, है ना, ये टर्म्स भी है तो इसका भी हो जाएगा, तो चलिए पहले तो x का मल्टीप्लाई करते हैं सब में, ये देखिए x का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा x स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस 2x एंड प्लस रूट 3x, ये तो कॉमन निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है बेटा। अब माइनस 2 का होगा किससे, x से, तो माइनस 2x
अब सर ये तो हमने सही किया है ना, हाँ ये सही है। -2 का भी तीनों में होगा तो -2x, फिर +4 एंड फिर ये देखिए ये वाला प्लस माइनस मिलके -2√3। तो सर 2 का हो गया। अब सर 3 का भी तो करेंगे सब में, सो ये क्या हो जाएगा -√3x, -3 का x में, फिर माइनस और माइनस, तो ये सर हो जाएगा +2√3, है ना, चेक कर लो आप। और फिर सर माइनस और प्लस का तो होगा तो माइनस हो जाएगा, और सर यहाँ पर 3 आ जाएगा। ओके, ये तो सर कर लिया हमने, गुड, ये तो हमने कर लिया सर, ये मल्टीप्लाई आ गया। और किसका, चलो ये तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। फिर ये है x माइनस ये, और x माइनस लेमडा इज इक्वल टू ये वाला, है ना। हम लोग ताकि स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो कोई क्लैरिटी हमें बाकी ना रह जाए। x पे पावर 4 -6x³ -26x² +138 एंड -35, ठीक है। अब देखो मुझे तो इसका वैल्यू निकालना है ना बेटा, तो मुझे जब इसका वैल्यू निकालना है तो पहले तो इसको सॉल्व करो यहाँ से, ये अपने आप कट कट के कुछ ना कुछ खत्म हो जाएगा। चलो देख लेते हैं क्या हो रहा है इधर। तो x² तो कहीं नहीं है तो x² उतार लीजिए, x² कहीं नहीं है तो x² को उतारिए, -2x, ओके, तो ये -2x क्या हो गया, -4x हो गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ओके। फिर +√3x, -√3x कट गया। फिर सर ये -2√3 +2√3 ये भी सर कट गया। सर ये +4 और -3, सर ये तो 1 आ गया, हाँ जी, ये देखिए सही है। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, ये मल्टीप्लिकेशन भी मेरे ख्याल से सही होना चाहिए, चेक कर ले एक बार, चेक कर लेते हैं। x² -2x और हाँ ठीक है, फिर -2x +4, ठीक है, -3x, फिर प्लस, ठीक है, और फिर माइनस, ठीक है, x² -2x ये हो गया, +3x +√3x -√3, ठीक है, -2x ये हो गया, +4 ये, चलिए ठीक है, ये प्लस एंड ये माइनस, +2√3 प्लस -2, तो ठीक है, फाइनली हमारे सामने ये आ गया, ये चीज मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, मल्टीप्लाइड बाई सर x माइनस गामा और x माइनस लेमडा इज इक्वल टू, अगेन मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप करने जा रहा हूं, है ना, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। x पे पावर 4 -6x³ -26x², फिर +138 -35 इज इक्वल टू 0, ये। अब बेटा मैं अगर इस वाले नंबर को उठा के उधर पटक देता हूं तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, तो देखिए x माइनस गामा, x माइनस लेमडा इज इक्वल टू ये चीज x पे पावर 4 -6x³ -26x² +138 -35, ठीक है। ये 0 हमने जबरदस्ती कर दिया है ना, इधर 0 की कोई मतलब नहीं है, ठीक है। डिवाइडेड बाई, ये देखो, ये डिवाइडेड बाई किससे सर डिवाइड होगा, ये x पे पावर 2 -4x +1। तो अगर बेटा मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं तो सर वो किसके बराबर आएगा, सर वो इसके बराबर आएगा। तो सॉल्व करिए, पहले इसको सॉल्व कर ले, चलो तो सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। x पे पावर 4 -6x³, ठीक है, 6x³ -26x² +138 -26x² +138x 138x होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ चीजें भूल जाते हैं, 138x होगा, यहाँ भी मैं छोड़ दिया हूँ, है ना, ये आप लोग कंफ्यूज करेगा, है ना।
तो ये 138x और क्या है -35। यहाँ भी सब जगह वही गलती हुआ है, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं ना। -138x -35 x -35, ठीक है। ये तो 138x -35, 138x -35 किससे डिवाइड करना है? ये एक्स स्क्वायर -4x + 1, एक्स स्क्वायर -4x + 1, एक्स स्क्वायर -4x + 1। चलो इसको डिवाइड करो फटाफट, है ना। तो 1 टाइम्स देखो चला जाएगा बेटा, 1 टाइम्स चला जाएगा यहाँ पर 1, एक्स स्क्वायर नो एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 टाइम नहीं जाएगा, x पे पावर 4 होगा ना। मुझे लगा कि ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, इधर भी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x पे पावर 4, x पे पावर 4। अब इस एक्स स्क्वायर का इसमें भी होगा तो 4x पे पावर 3, एंड यहाँ पर बेटा 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 का अगर होगा तो ये क्या हो जाएगा +x²। चलिए माइनस करते हैं, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। ये तो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा -6x³ और ये तो -2x³, ये कितना हो जाएगा सर? ये -27x² हो जाएगा, और क्या होगा, ठीक है। ये +1 ही है ना, हाँ +1 ही है, ठीक है, क्योंकि +4 और -3, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा। अब आगे क्या उतारेंगे, +138x -35, ये तो सर यहाँ पर -2 तो एक प्लस एक माइनस है, तो यहाँ पर तो पहले माइनस लग जाएगा, x² है तो सर यहाँ पर 2x हो जाएगा ना, ये आपको आता है। चलिए 2x³ -2x का इससे करेंगे तो सर ये -8x², ठीक है सर, और ये हो जाएगा -2x। चलिए माइनस करिए सर, ये माइनस सॉरी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, है ना, ये तो कट गया, ये हो जाएगा -19 है ना, -19x², और ये हो जाएगा +140x एंड -35, ये तो उतर जाएगा वैसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, x², हाँ अब ये x², तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ गया, ये देखिए ये माइनस आ गया, ये 19 आ गया हमारा, 19 का कर लीजिए इससे, तो -19x², फिर -19 का 4 में अगर करते हैं, ठीक है, तो 80 76 -76x और यहाँ पर -19, ये सर ये प्लस बन गया, ये भी प्लस बन गया और ये भी प्लस बन गया, तो ये तो कट गया, और ये जो है हमारा प्लस प्लस 711 216x माइनस ये कितना आ गया 16 आ जाएगा, ठीक है। अब ये रिमाइंडर तो नहीं आना चाहिए था, ये रिमाइंडर क्यों आ गया इसको जरा देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके सो देखो यहाँ पर, हाँ तो इसमें देखो एक फॉल्ट आ गया, ये सर ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखो दो रूट्स तो ऑलरेडी हमने देखो यहाँ पर किया बेटा, ये जो है ये 0 आना चाहिए, ये पूरा का पूरा जो है ये कुछ फैक्टर आना चाहिए। अब ये पूरा पूरा अगर इसको डिवाइड नहीं करेगा, रिमाइंडर आ जाएगा, तो हम फैक्टराइजेशन, ये रिमाइंडर आ गया तो हम इसका फैक्टराइजेशन नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। इसका फैक्टराइजेशन निकालेंगे तभी तो भाई गामा और लैम्डा का वैल्यू आएगा, बाकी के दो रूट्स का वैल्यू आ गया। तो ये जो है ना, ये जैसे ही रिमाइंडर आएगा आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि सर ये तो गलत है, गलत है, आपसे दोबारा चेक करेंगे, है ना, दोबारा चेक करेंगे। तो चलिए हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, मैं एक बार जल्दी से चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है तो ये सही हो गया, ठीक है, ठीक, यहाँ भी सही है। अब जो ये बच गया और ये आ गया इधर, यहाँ पर आ गया, ठीक।
नाउ डिवाइड हमने किया एक्स स्क्वायर ठीक है, सही है, माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स ठीक है। हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो माइनस टू एक्स है, माइनस टू एक्स का प्लस एक्स स्क्वायर से होगा तो सर ये तो ठीक है, लेकिन इस माइनस टू एक्स का माइनस फोर से होगा बेटा तो ये प्लस हो जाएगा, और यहीं पर गलती हुआ है। ठीक, चलो तो अभी गलती पकड़ में आ गई, गलती पकड़ में आ गई तो सर ये प्लस अगर हुआ है ना तो ये क्या हो जाएगा सर, ये माइनस होगा, ये जो है आपका ये माइनस होगा, ठीक है, और ये माइनस है तो ये तो प्लस हो जाएगा। तो अभी देखो नीचे का सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, ये चेंज करना पड़ेगा हमें, और ये चेंज करना पड़ेगा तो सब कुछ चेंज करना पड़ेगा यहाँ तक, तो बस यहीं तक चेंज करना है हमें। हाँ ये आ गया हमारा, ये अब देखिए कि सर ये तो कट गया, ये माइनस 27x स्क्वायर एंड माइनस है तो ये माइनस 35x स्क्वायर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस 140x आ जाएगा और माइनस 35 आ गया, ठीक है। हाँ यहाँ पर क्या आएगा, ये हटाना पड़ेगा तो सर अभी तो इसको हटाइए, चलिए अब ये माइनस 35x स्क्वायर तो यहाँ पर माइनस है बेटा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा 35 है ना, यहाँ पर आ गया माइनस 35, माइनस 35x स्क्वायर तो माइनस 35 एक्स स्क्वायर, ठीक, फिर माइनस इससे होगा तो माइनस एंड माइनस प्लस तो ये प्लस 140x, और फिर माइनस 35 प्लस तो ये भी हो जाएगा माइनस 35, ओके, ये प्लस हो जाएगा बेटा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, आप देख सकते हो कि सारा कुछ कट पिट गया, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस कट गया, जीरो आ गया नीचे, यानी कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो अब मैं बोलूंगा कि देखो ये जो ये वाला चीज है, ये वाला जो चीज है ये कितना आया सर, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 35, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 35, यही आया ना बेटा, ये देखो यही आया ना, क्या समझ में आया। तो अब फाइनली ये किसके बराबर हुआ सर, एक्स माइनस गामा एक्स माइनस लेमडा के बराबर हुआ, यानी अगर मैं यहां पर करूं आपको तो देखो कंफ्यूज नहीं होना है ना, एक्स माइनस गामा एक्स माइनस लेमडा ये किसके बराबर हुआ सर, ये बराबर हो गया इसके एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 35 के बराबर हो गया ये बेटा, ये। अब इसी चीज को हमें क्या करना पड़ेगा बताओ सर, ये वैल्यू निकालने के लिए ये इसके बराबर आ रहा है तो सर इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, यानी कि हमें किसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, इस x ये वाले का, तो सर ये वाले का फैक्टराइजेशन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 35 फैक्टराइजेशन अगर करते हैं हम लोग तो ये एक्स स्क्वायर 7 और 5, हाँ तो ये तो क्लियर हो गया, माइनस 7x माइनस प्लस 5x माइनस 35, ठीक है बेटा, आगे देख लीजिए, ये दो दो का कॉमन निकालेंगे आप लोग है ना, तो सर ये हो जाएगा x माइनस 7 और दूसरे में क्या हो जाएगा सर, दूसरे में से 5 बाहर निकालिए प्लस 5 तो x माइनस 7, तो फाइनली जो मेरे पास आया एक सर x प्लस 5 आ गया और एक सर x माइनस 7 आ गया, ठीक है। अब इसको मैं कंपेयर करूंगा, देखो इसको मैं कंपेयर करता हूं सर x प्लस 5 और x माइनस 7 यही आया है मेरा, किसके बराबर आया है सर, ये x माइनस गामा x माइनस लेमडा के बराबर आया है, तो सर ये जो है x माइनस गामा और x माइनस लेमडा के बराबर आया है। देखो इधर x माइनस माइनस तो मैं लेमडा को या गामा को मान लूं, क्योंकि माइनस माइनस सर ये वाला किसी एक से भी मैच कर सकता है, तो मैं बोलता हूं सर मेरा कोई एक तो माइनस 7 है, यानी कोई एक तो 7 है, ठीक है, और दूसरा कोई एक तो क्या है, अब इसको अगर किसी से भी मैच करोगे, मान लो इसको इससे मैच करोगे, ठीक है बेटा, तो यहां सर प्लस 5 है उधर माइनस 5 है, तो आप कैसे सोचोगे कि सर ये क्या होगा, तो सर x का वैल्यू फिर क्या होगा माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है, क्या ये बात समझ में आई, यानी कि दूसरा अल्फा को अगर तुमने 7 मान लिया तो इस लैम्डा को तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा माइनस 5 मानना पड़ेगा, क्योंकि पता है कैसे हो जाएगा ये भाई, ये हो जाएगा x प्लस माइनस 5 ऐसे, भाई एक ही बात, सॉरी x माइनस माइनस 5 हो जाएगा है ना, x माइनस माइनस 5, तो हाँ
ये देखो ऐसे। अब तो सर आ गया x, इधर भी x सर, फिर बीच में माइनस, इधर भी माइनस, और सर ये लैम्डा किसके बराबर आ गया? -5 के बराबर आ गया। ये तो कंपैरिजन करना है, बट हमें ऐसा अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है तो सर कुछ नहीं, ये x + 5 इज इक्वल टू 0 मान के x का क्या वैल्यू आया? -5। तो सर एक वैल्यू आ गया -5। दूसरा सर x - 7 इज इक्वल टू 0, तो x का क्या वैल्यू आ गया सर? प्लस। ये तो हमने तो कहा था कि सर अगर इसको मानते हैं तो देखो बिल्कुल ये 7 के साथ मैच कर रहा है, और अगर सर इसको दूसरा मानते हैं तो ये किसके साथ मैच कर रहा है? सर ये बिल्कुल देखो -5 के साथ मैच कर रहे हैं, ये वाला यहाँ माइनस, ये भी माइनस, फिर -5 इससे मैच कर रहे थे, देखो सेम चीज आ गया। तो आपके 2 जीरोस तो दिए ही हुए थे, है ना? क्या था? 3 + √2, 2 + √3। देखो आपके पास कितना था? 2 + √3, एक जीरो ये, फिर 2 - √3, एक जीरो ये, फिर हमारे पास क्या आया? एक -5 आया और एक +7 आया। ये 4 रूट्स होंगे किसके सर? इसके, ये वाले पॉलिनोमियल्स। 2 दिया हुआ था, ये दोनों दिया हुआ था, ये दोनों हमने निकाला। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? हमने ये दिया हुआ था, हमने जैसे मानते हैं वैसे माना। ठीक है बेटा, तो ये आया, ये आया, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया, मल्टीप्लाइड बाई दिस वन, तो दिस वन इज व्हाट? डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया तो ये आया। इसका फाइनली क्या कर दिया? फैक्टराइजेशन निकाल लिया, तो ये आ गया और ये आ गया। बस ये 0 ही तो होगा भाई, किसी को किसी से मल्टीप्लाई करो 0 आना चाहिए, तो 0 होगा। या फिर हम कंपेयर कर लेंगे तो भी हमारा वैल्यू आ गया। ठीक, चलिए अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये दिया है पॉलिनोमियल दिस वन, x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10 डिवाइडेड बाई दिस वन x² - 2x + k। तो रिमाइंडर क्या आता है? ये आता है। k और a का वैल्यू पता करना है। ठीक है, रिमाइंडर कम्स आउट bx + a, फाइंड k एंड a। ओके, तो अगर देखो पहले तो मैं इसको भाई इसको ना रिमाइंडर इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है वैसे करते हैं, तो x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10। ठीक है बेटा, इसको जो है डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या तरीका निकलता है। x² - 2x + k, x² - 2x + k। अब देखो यहाँ अगर यहाँ दे दिया है ना, ये x + a दे दिया है। अगर ये भी दे दिया होता तो ये 3 दे दिए होते तो चौथा वेरिएबल हम पता कर लेते। तो मैं ये दिया हुआ है ना, इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो ये अब वैसे अलजेब्रा से तो नहीं हो पाएगा, है ना? तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं लास्ट में क्या आता है। जब कुछ भी नहीं दिखे हमें तो जो होता है वही कर देना चाहिए। तो अब डिवाइड करते हैं ना सिंपली। तो चलो 1 बाई 1 डिवाइड करते हैं बहुत सिंपली। यहाँ पर बेटा x² आ जाएगा, तो ये x⁴, अब इस x² का सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x⁴, फिर प्लस 2 सॉरी x² का k से होगा तो k x², है ना? माइनस करेंगे तो सर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अच्छा ये क्या हुआ? ये तो कट गया। ये क्या होगा बेटा? माइनस और प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा -4x³। ठीक है, अच्छा ये क्या आ जाएगा? ये 16 प्लस लगाकर, ये प्लस लगाकर मैं 16 - k x² लिख सकता हूँ क्या? नहीं समझ में आया सर ये कैसे हो गया? देखो ऐसे हो गया, 16x², ठीक है, ये फिर -kx², यही होगा ना? क्योंकि लाइक टर्म है तो क्या बनेगा? x² को बाहर निकाल दो तो 16 - kx² हो जाएगा। ठीक, तो बस यही चीज है। आगे क्या है? आगे सर -25x + 10। ये चलिए फिर देखते हैं कि सर अब क्या है। -4 यहाँ माइनस, तो पहले तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, पहली फुर्सत में यहाँ पर क्या लगेगा? पहली फुर्सत में माइनस लगेगा। 4 है, ओके, कोफिशिएंट यहाँ पर 4 और x, तो यहाँ पर 4x हो जाएगा ना, चेक कर लीजिए। ये -4 तो ये हो जाएगा -4x³। अब -4 का इससे होगा तो -8x², तो -8x² है ना, देखो -8x², और -4 का फिर k से होगा तो -4kx, ये हो जाएगा हमारा। फिर से इसको क्या करेंगे? माइनस ही करेंगे।
तो बेटा ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, सॉरी ये भी प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया। ठीक, चलो ये देखो ये तो कट गया। अब ये जो चीज है देखो फिर से वही बात कि 16 माइनस के, ठीक है, एक्स स्क्वायर और फिर प्लस 8 एक्स स्क्वायर। तो बताओ एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल दे तो 16 माइनस के प्लस 8 और यहां पर ऐसे हो जाएगा। और बेटा इसको भी तो सॉल्व कर सकते हैं आगे, 16 प्लस 8 प्लस आ जा रहा है क्या? ओके ओके ओके, कहां पर 16 माइनस के, ठीक है देख लेते हैं एक बार कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना। तो ये हो गया हमारा ये माइनस, तो यहाँ भी माइनस, माइनस 4x क्यूब, फिर माइनस, तो बेटा यहाँ पर प्लस होगा, दिस माइनस एंड दिस माइनस, ये प्लस होगा है ना। तो बेटा ये क्या बन जाएगा फाइनली, ये क्या बन जाएगा, ये माइनस बनेगा है ना। ये प्लस था, ये क्या बनेगा, माइनस बनेगा। यस ये माइनस बना, तो बेटा ये क्या बना, ये प्लस 8 है, ये क्या बना, माइनस बना। तब बताओ 16 माइनस 8 क्या होगा, 8 माइनस के, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर रख सकता हूँ। तो इतना लंबा ना करके मैं डायरेक्टली रख दूँ, तो मैं बोलता हूँ 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या है सर, आगे देखिए ये है माइनस 25x प्लस 4 के एक्स प्लस 10। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। हाँ अब देखते हैं, ये देखिए 8 माइनस के सर एक्स स्क्वायर, इधर क्या है एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट बस वहीं पर आ जाएगा, तो यहाँ पर रखते हैं प्लस, प्लस क्या रखेंगे बेटा 8 माइनस के, ये अब इसी 8 माइनस के का 1/1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, फिर 8 माइनस के का किससे मल्टीप्लाई होगा सर, 8 माइनस के का ना इस बार 8 माइनस के का ना इससे मल्टीप्लाई होगा सर -2 के से, है ना। ये देखिए -2 के से सर मल्टीप्लाई होगा, 2 के से नहीं सॉरी, -2x से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका इसमें भी मल्टीप्लाई होगा इसमें भी होगा, तो ये क्या आ जाएगा -16x एंड प्लस 2kx आ जाएगा। उतार दो इसको, हाँ सर उतार दीजिए, क्योंकि अब इसका मल्टीप्लाई इस -2kx में हो रहा है। ठीक है, और क्या आया है सर -16x प्लस 2kx आया है। ओके सर, अब इस 8 माइनस के का सिर्फ के में होगा, तो 8 माइनस के का सिर्फ के में होगा, तो कितना आ जाएगा बेटा, इसका इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो 8k माइनस के स्क्वायर। सर इसको भी उतार देता हूँ, हाँ उतार दीजिए, प्लस 8k एंड माइनस के स्क्वायर, माइनस के स्क्वायर, ये इतना लंबा। अब सर क्या करें, क्या करेंगे, क्या माइनस करेंगे और क्या करेंगे, ये सर माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, है ना। चलिए ये तो गया। अब देखते हैं कौन किसके साथ क्या हो सकता है ना। 16x 25x, तो ये देखो यहाँ पर मेरे ख्याल से ये माइनस है और ये तो -9x आ जाएगा क्या, ये खत्म। ठीक है बेटा, ये 4kx, ये -2kx, तो यहाँ पर प्लस 2kx आ जाएगा क्या, हाँ सर आ जाएगा। ठीक है, और ये देखो ये वाला और बाकी ये वाला ये मैच नहीं कर रहा है आपस में, लाइक टर्म नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एज इट इज उतारना पड़ेगा हमें। ठीक है, उतार लेते हैं, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा प्लस के स्क्वायर माइनस 8k एंड प्लस 10। ठीक है बेटा, ये हमने उतार लिया। चलिए, तो ये हमारे सामने फाइनली आ गया, ये देखो ये फाइनली हमारे सामने क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी x का पावर क्या आ गया 1, उधर x का पावर क्या है 2 है, तो यही रिमाइंडर है। अच्छा, अब इसको जरा हम कंपेयर करेंगे गिवन रिमाइंडर से। ठीक है, ये गिवन रिमाइंडर से जरा इसको हम कंपेयर करते हैं। ठीक, चलो गिवन रिमाइंडर है हमारा x प्लस a, ये, और हमारे पास क्या है, हमारे पास सर है -9x प्लस 2kx। ठीक है सर, प्लस के स्क्वायर,
प्लस के स्क्वायर माइनस 8k एंड प्लस 10। सर ये है हमारे पास, ये देखिए। तो अब इसका क्या करेंगे बताइए, x, अच्छा इधर x का जैसा कुछ कॉमन निकलेगा क्या, इधर x का जैसा कुछ कॉमन निकलेगा क्या, देखते हैं, अगर कॉमन निकलेगा तो निकाल लेंगे। तो मैं देख पा रहा हूं कि सर इधर x प्लस a है, तो इधर भी कुछ कॉमन निकल रहा है x के जैसा ही, x के जैसा ही कॉमन निकल रहा है। क्या निकल रहा है सर, तो मैं बोलूंगा इधर देखो अंदर -9 प्लस 2 और बाहर x निकल गया, हाँ जी, फिर प्लस, और इसको मैं दूसरे कलर से ले लेता हूं, यस, ये सर हो गया के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। अब आप अगर देखोगे तो यहाँ पर दो चीजें आपको समझ में आएंगी कि सर यहाँ से यहाँ एक और यहाँ से यहाँ दो, और बीच में सर प्लस का सिंबल है, और इधर x और ये भी तो सर है। तो सर क्यों ना मैं इस कंपैरिजन कर लूँ इसका, क्यों ना मैं कंपैरिजन कर लूँ, तो मैं बोलूंगा सर x के कंपैरिजन में क्या आ रहा है बताइए, सर इस x के कंपैरिजन में ये वाला x आ रहा है, हाँ, इस x के सामने कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो सर 1 के कंपैरिजन में फिर क्या आ रहा है बताइएगा। यहाँ पर देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, k भी है ना, यहाँ पर k भी है बेटा, तो मैं इसको फिर से एक बार लिख लेता हूं, देखिए 2k, ठीक है, और फिर बाहर क्या है, बाहर जो है वो हमारा x है, ठीक है ना। हाँ ये देखिए, और यहाँ बीच में क्या है, प्लस है, तो वही प्लस को तो हमने बेस बनाया, उसी प्लस को हमने बेस बनाया है कि सर ये बीच में प्लस है, और यहाँ पे बीच में क्या है, प्लस है, देख लीजिए ये बीच में प्लस, तो सर x, तो ये सर ये जो हमारा है, ये जो 1 है, इसको -9 + 2 कैसे कंपेयर किया जा सकता है क्या, हाँ किया जा सकता है, तो चलिए कर लेते हैं कि सर -9 + 2k, ये -9 + 2k इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से k का वैल्यू आ सकता है ना, क्योंकि एक ही वेरिएबल हो गया, और k का वैल्यू पता करना है तो एक वेरिएबल अगर है तो ये हो गया बेटा 2k इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो ये हो गया 10, तो k इज इक्वल टू व्हाट, k इज इक्वल टू 5, तो k का वैल्यू तो आ गया हमारे पास, ठीक है। अब अगला ये बचा हमारे सामने, तो सर ये क्या है, चेक करते हैं। सर ये जो है हमारा, ये देखिए, ये जो सर है k² -8k एंड प्लस 10 है, यही है ना बेटा। k का वैल्यू क्या आया है सर, k का वैल्यू तो 5 आया है, तो रख लीजिए, तो 25 हुआ, -8 ये 40 हुआ बेटा, और ये +10 हुआ, ओके। तो ये क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा -5 आ जाएगा ये, और ये पूरा का पूरा सर क्या था, ये पूरा का पूरा सर a है, देखिए ये x × 1, ये 1 मानेंगे तभी तो x बनेगा ये, और सर ये क्या मान ले, फिर इसको क्या मान ले सर, इसको a मान लो, a मान लेंगे तो सर उसी फॉर्मेट में आ गया, तो ये जो आया है वैल्यू यही हमारा a है, तो a का वैल्यू क्या आया सर, -5 आया, -5, ठीक है। तो ये क्या क्लियर हुआ हमारा कि सर k का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया सर, k का वैल्यू, k इज व्हाट एंड a इज व्हाट, k इज 5 एंड a इज -5, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, थोड़ा सा ये डिवीजन में नॉर्मल डिवीजन जैसा नहीं है, थोड़ा सा अलजेब्रा को दूसरे लेवल पर ले जाएगा इसमें। तो ये हमारा हो गया सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, और ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, यस ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ठीक है बेटा, हमने ये जो है ना पूरा ऑप्शनल क्वेश्चन को भी कर लिया, 5 क्वेश्चन को हमने समझा, बहुत डिटेल में समझा। अब इसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।